So, Jai Hind everyone, I hope you are doing good and I welcome you back on Hritoshanam UPSC. So, today in this particular video, we are going to discuss what I promised earlier, and it was about that I'll be letting you solve the PYQs of prelims and mains of the topic which we are covering. In continuation of it, I have came up with these 7 questions of prelims from 1995 to 2025, and we'll be dealing with all of them. But as you can see that this time period, 1995, 25, 30 years, in 30 years, only 7 questions have been asked from this particular topic. I mean, it's really too low. It is not expected from this topic that this scanty amount of question we will be seeing in examination. I mean, the expectation is too high. So if you see that 7 question in 30 years, that means almost 1 question in more than 4 years is coming from this topic. But still, I consider it a very important topic. Why? Because of the coreness of this topic. Some topics are like gateway topics. Some topics are gateway. You have to cover, you have to enter from the gate now. There is no other way. So just because of the basic foundation, we study the core topics. And among those core topics, the monsoon is one of them. And that's why we are covering it. It has, I mean, so many significance and utilities for public servant also. Because suppose, just imagine a public servant has no knowledge about monsoon, how the winds are coming, how the monsoon of India happening. Now you suppose how he will be if he's supposed to create some uh, policies over agriculture. No, sorry, over agriculture. Do you really think he would be able to create a very eye-catching or very effective uh, policy over agriculture of India? Huh? When it comes to agriculture, you should know, you must know that what amount of rainfall is happening in which area. Because India is a very diverse country. Huh? Southern part of India receives different amount of rainfall in comparison to northern area. So these topics are very crucial for the practical policy implementation and practical policy development also. So that's why I call these topics at gateway topics. After cracking of the examination, when you will be IAS or IPS officer, especially IAS officer, or when you are an aspirant, in both cases, this core topics or gateway topics are important. You have to cover them because when it comes to the examination, monsoon wind pattern, how the winds are coming, these topics are integrated. Huh? Without knowing the wind pattern, you won't be able to decipher that what kind of vegetation or what kind of forests are happening where, what kind of agriculture, what kind of cropping pattern, why sugarcane are produced more in the northern part of India, especially in the Uttar Pradesh or Uttar Pradesh state.
and why the shifting of sugarcane industry is happening towards the southern part of India. It's an integrated topic. It's a gateway or core topic. You have to learn it. You have to understand it. Otherwise, your basic foundation would be not so strong. Hmm? So, apart from seeing the importance of this topic, that how many questions have been asked in previous year question or in previous years, won't be a good approach to see the importance of this topic. Huh? It's a core topic, gateway topic. We have to cover it. That's it. So let's start our video. क्वेश्चन जो पहला है वो इंडियन ओशन डायपोल पे है. So something, the context of it, it is written here that sometimes mentioned in news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements correct है. तो वो कह रहा है कि इंडियन ओशन डायपोल वाला जो फिनोमिनन है is characterized by a difference in sea surface temperature. हाँ बिल्कुल सही बात है. Between tropical western Indian Ocean, let me draw diagram of it. ये आपका मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया, ये आपका भारत हो गया, ये आपका इस तरीके से चला जाएगा. पूरा ही बना देते हैं. ओके, सो दिस इज योर, sorry, this is your 0 degree latitude, yeah, latitude, the equator. तो ये आपका इंडियन ओशन हो गया. तो ये बोल रहा है कि सी डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्ट इंडियन ओशन, ट्रॉपिकल वेस्ट, वेस्ट मीन्स हियर इंडियन ओशन, हाँ बिल्कुल होता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन इधर आ जाएगा आपका, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, मतलब ये भी नहीं, ये वाला देख रहे हो आप इधर. और हमने जब इस टॉपिक को पढ़ा था, इंडियन ओशन डायपोल को, तकरीबन इसी टॉपिक को पढ़ाने में 22 मिनट के आसपास ली मैंने. तभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई नाम से ही पता चल रहा है, द फिनोमेना इज हैपनिंग इन इंडियन ओशन. हाँ, देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ, देयर इज in relation with the Pacific Ocean. So this fact the examiner has changed, and here he is quacking us. तो एक तो ये पोर्शन होता है और दूसरा ये पोर्शन होता है. उसमें क्या होता है, आई हैव कवर्ड इन द वीडियो, बट द basic important fact is this, that from a very general thing which is not even written in the books, or we can say it develops from the, I mean, when we analyze a topic, this kind of logical understanding gets developed. तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि हमने क्या याद कर लिया कि भाई इंडियन ओशन डायपोल है, दैट मीन्स द फिनोमेना इज हैपनिंग इन द इंडियन ओशन. हाँ, इंडियन ओशन में दो पोर्शन है, एक तो वेस्ट इंडियन ओशन, एक आपका द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. अब फिनोमेना तो इन्हीं दो पोर्शन में होगा ना, यही तो दो पोल्स नेगेटिव और पॉजिटिव क्लियर, वो वार्म और कोल्ड आपके डेवलप हो रहे थे, उनके हिसाब से विंड पैटर्न आपका फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से इट वाज इम्पैक्टिंग द साउथ वेस्ट मानसून. अब व्हाट वाज हैपनिंग in Indian Ocean dipole, that is not important for us right now. But you can see from a basic point, the question is, the first statement of the question has cracked. तो इस तरीके से जो आपका कंटेंट है वो लगता है when you read it properly. तो दूसरा देखो, an Indian Ocean dipole phenomena can influence an El Nino's impact on the monsoon. अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, वो क्या बोल रहा है, इंडियन ओशन डायपोल फेनोमेना, ठीक है, मतलब
ये कितने बड़े लेवल पे हो रहा है आपको पता है? जब इसकी स्टडी भी करी गई होगी आपको लगता है कि ये जैसे हमें पढ़ा दिया गया है वैसे ही ऑकर होता होगा। कितना बड़ा इंडियन ओशन है भाई, अगर रिसर्च के लेवल पे देखें तो बहुत बड़ा इंडियन ओशन। उसमें अपने कन्वीनियंस के लिए जिस तरीके से कि हम स्टूडेंट्स को, एक लेमैन को, एक कॉमन मैन को हम कुछ इस कंटेंट को डिलीवर कर सकें, इस कंसेप्ट को डिलीवर कर सकें, उस वे में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया यार। क्लाइमेटोलॉजी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक बिकॉज इट नीड्स R&D, हैवी R&D, और उतना अवेलेबल नहीं होता। कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे? हाँ, कहाँ देखोगे कौन सी विंड कहाँ मुड़ गई? इस तरीके से थोड़ी हो रहा होता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डेवलप दीज विंड पैटर्न्स। तो वो कह रहा है कि इतना बड़ा फिनोमेना कि इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना कैन सकता होगा इन्फ्लुएंस किसको? एल नीनो के इंपैक्ट को मॉनसून के ऊपर। क्यों नहीं कर सकता होगा भाई? सोचने वाली बात है ना यार, कि इंडियन ओशन डायपोल भी यही हो रहा है। हाँ, और आपका एल नीनो का इम्पैक्ट भी आके साउथ वेस्ट मानसून पे ही होता है। तो भाई कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट कर रहा ही होगा ना यार। तो कैन इन्फ्लुएंस, इट कैन इन्फ्लुएंस। तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो ठीक हो जाएगी, और आपका ये स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फैक्ट ये आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, जो ड्यूरेशन है ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। यस, बेसिक फैक्ट है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो, ये आपका भारत है, ठीक है। वो ये कह रहा है पहली स्टेटमेंट में कि जो ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। हाँ भाई, ऐसा होता है। ड्यूरेशन पे फोकस करना, ड्यूरेशन कह रहा है, मतलब कि बारिश सदर्न इंडिया में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया। तो सच बात है ना, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे कोस्टल वाला रीजन पड़ जाता है, तो मानसून के आने से पहले भी जो प्री मानसून शावर्स हो रहे होते हैं वो भी बारिश दे रहे होते हैं, फिर मानसून आके भी बारिश देता है। हाँ, फिर मानसून मतलब जब मानसून आके भी बारिश देता है, और फिर उसके बाद जब रिट्रेक्टिंग मानसून होता है तब भी बारिश होती है। तो भाई मानसून का जो ड्यूरेशन है वो सदर्न इंडिया में ज्यादा है ना नदर्न इंडिया के कंपेरिजन में। और यहाँ क्या होता है, बस यहाँ पे जो ये भी आपका अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच यूं करके बस जारी होती है, एक ब्रांच यहाँ से जा रही होती है, और यही जो ब्रांच अपने इनिशियल फेज में जा रही होती है वही मानसून कर देती है वहाँ पे, वही रेनफॉल कॉज कर देती है। बट आपने देखा कि एक तो प्री मानसून सावर से भी पहले, फिर मानसून में भी जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तब भी आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल होती है, एंड देन रिटर्न मानसून ऑल्सो, द नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑल्सो, इट ऑल्सो कॉज rainfall in southern part of India. That's why we can say the duration of the monsoon decreases from southern India to northern India. दूसरा आप देखो तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन नदर्न प्लेन्स, इसकी ही बात हो रही है सिर्फ इस पोर्शन की, ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी यहाँ पे पूरा ओशन मिल जाता है उसको, मॉइस्चर लेके आती है, बारिश अच्छी खासी करती है, लेकिन यहाँ पे उसको इस लेवल का मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड हो पाता ना जो उसको ओशन दे रहे थे। तो जैसे जैसे वो राजस्थान की तरफ बढ़ता है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, वैसे वैसे उसकी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो डिक्रीज होती चली जाती है। बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इवन बताने की भी जरूरत नहीं थी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। ये भी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगा आपका।
बहुत ही बेसिक मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब का क्वेश्चन है ये? 2012 का, दिन 14। इसे देखो, आप ही कर लो इसे, मैं क्या बताऊं। कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। सीजनल रिवर्सल मतलब कि जब वो साउथ वेस्ट मानसून होता है तो इस तरीके से आता है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन the ITCZ shift or the wind pattern shift, there is happen a reversal, complete reversal, 180-degree change occurs in the wind pattern, अपोजिट हो जाती है एकदम। तो वो किस में होती है? some climate type. Okay, now more question. A new type of question fourth. A new type of El Nino called El Nino Modoki, ये पढ़ाया था मैंने, appeared in news, 2010 का क्वेश्चन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, एल नीनो की बात कर रहा है, इसी का न्यू वर्जन एल नीनो मोडोकी न्यूज में था। बताइए भाई, पहली स्टेटमेंट, जो नॉर्मल एल नीनो होता है फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, वेयर इज एल नीनो मोडोकी फॉर्म्स इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब सुनो मेरी बात, जब मैंने मोडोकी पढ़ाया था तो उसमें मैंने पहली ही लाइन उसके नोट्स में लिख रखी थी, पहली ही लाइन उसके नोट्स में लिख रखी थी कि मोडोकी का मतलब ही होता है द वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक। आप जब जाके देखोगे उस वीडियो के नोट्स को तो आपको पता लिखा हुआ मिलेगा कि मोडोकी का मतलब ही होता है वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक। तो वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल एल नीनो बोल दिया भाई उसने, कहां पे? सेंट्रल पैसिफिक। कर दिया फैक्ट गलत। हाँ, और जो एल नीनो मोडोकी है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, मतलब अपोजिट कर दिया उसने, रिवर्स कर दिया, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अब देखो कि जो नॉर्मल एल नीनो है रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन, बट एल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है कि एल नीनो की वजह से अटलांटिक ओशन में जो हरिकेन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो एल नीनो मोडोकी की वजह से जो ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स हैं वो डेवलप होते हैं, और वो भी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब कि मैं अगर डायग्राम क्रिएट करूं तो ये आपका भारत और ये इस तरीके से इंडोनेशियन वाला पोर्शन, ये ऊपर गए हम, और यहाँ पे मान लो आप जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, तो ये वाले जो पोर्शन में आपका जो ये ईस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, और ये आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशन। तो हमें पता है एल नीनो यहाँ से शुरू होता है, तो और फिर इसके बाद अटलांटिक, इस रीजन के बाद साउथ, इसके बाद अटलांटिक ओशन पड़ रहा है यूरोप और अमेरिका के बीच में। तो वो वाला जो रीजन है ईस्टर्न पैसिफिक, इसके बराबर वाला जो रीजन है, जब ये हीट अप हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशन में जो हरिकेन्स है वो डिमिनिश हो जाते हैं। वो पूछ रहा है ऐसा, अब होता है कि नहीं होता हम वो देखते हैं, लेकिन एल नीनो के मोडो की वजह से वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है और ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन प्रोड्यूस देयर। अब ऐसा होता क्यों है? इसका जो रीजन है ना वो है द हायर विंड शेयर, विंड शेयर कह लो या शिफ्ट कह लो। जो ये फिनोमिनन है इसमें होता क्या है, इसमें जो डायरेक्शन है वेव्स की, विंड डायरेक्शन जो होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है और बहुत फास्ट मूव करती है, बहुत फास्ट मूव करती है और चेंज होती रहती है। अब जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जब हीट अप हो रहा होता है तो एल नीनो के केस में, नॉर्मल एल नीनो के केस में ये वाला पोर्शन हीट अप हो रहा होता है अच्छे खासे लेवल पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट रखा होता है। तो हमें पता है कि हरिकेन्स वगैरह के लिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे ड्यू टू हायर विंड शेयर शिफ्ट की वजह से जो हरिकेन्स का जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि जो हरिकेन्स है इस तरीके से जो वो डेवलप होगा, विंड शिफ्ट उसके टॉप वाले एरिया को डेवलप ही नहीं होने देता है, उसको प्रॉपर डेवलप भी नहीं होने देता है, स्पेशली टॉप वाले एरिया को। जब विंड शेयर हाई होता है तो
ज्यादा जो वेव्स हैं, विंड जो विंड हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो कट ऑफ कर देती हैं, उनके टॉप को कट ऑफ कर देती है। मतलब कह ये सकते हैं कि जो विंड शेयर है वो एक सीजर की तरह काम कर रही है। लेकिन वहीं जब सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जब हीटिंग होती है तो ये वाला पोर्शन उतना ज्यादा हीट नहीं हो पाता। जब वो हीट नहीं हो पाता तो जो हायर विंड शेयर था वो रिड्यूस होके, मतलब वो लोअर विंड शेयर हो जाता है। उतना ज्यादा विंड शेयर, जब विंड शेयर नहीं होता तो डायरेक्शन में विंड की बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो जब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, दैट लीड्स टू द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द हरिकेन्स एंड टॉर्नेडोज। तो वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाता है। और जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाते हैं तो उनकी ग्रेटर नंबर ऑफ भी हो जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है ओनली टू। यहाँ जो एक नया कंसेप्ट था वो बस यही था, विंड शेयर। ये ऑप्शन में हम पढ़ते हैं, इवन इन जीएस ऑल्सो, आई डोंट नो, but in option, yeah, we covered it. So the second statement of it, we can put it to the difficult side. Huh? We can put it. So let's move to the question. It is saying कि La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है, उस समय पे फ्लड हो रही होगी। तो वो कह रहा है कि हाउ ला नीना इज डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। कैसे डिफरेंट है? तो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर। ला नीना, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Equatorial Pacific Ocean और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। अब मुझे एक बात बताओ यार, हमने कई बार डायग्राम क्रिएट कर रखा है, फिर से बना देते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका इंडोनेशियन वाला रीजन हो गया, इस तरीके से ऊपर चलेंगे। फिर ये आपका साउथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया, ये इस तरीके से आपकी इक्वेटर जाए। तो होता क्या है कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है। मैंने क्या बताया था आपको, ला नीना को और एल नीनो को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? ला नीना और एल नीनो, बस इतना याद रखो कि एल नीनो के केस में जो विंड है, मतलब जो मॉनसून है वो कम हो जाती है, और ला नीना के केस में इंटेंसिफिकेशन हो जाता है। मॉनसून का इंटेंसिफिकेशन हो, अगर एल नीनो को पकड़ें पहले, तो एल नीनो के केस में आपका जो मॉनसून है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ से आ रहा था उसके अपोजिट में विंड आ रही होगी, अपोजिट में विंड आ रही होगी तो यूं जा रही होगी। हाँ, यूं करके उठ रही होगी, यूं उठने के लिए यहाँ डिसेंड हो रही होगी। जब यहाँ डिसेंड हो रही होगी तो इधर से आ रही होगी, जब इधर से आ रही होगी तो इधर से उठ भी रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एल नीनो के केस में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है। ये ठीक है ना? आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? ये याद करने का तरीका था ये मेरा खुद का, कि इस तरीके से आपका विंड पैटर्न होगा। ये यूं करके डाउन हो रही होगी, यूं जा रही होगी, ये यूं आ रही होगी, ये यूं आ रही होगी, ये यूं आ रही होगी। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना डायरेक्ट हम याद करके उसको रखते हैं ना, तो after some long period of time when you won't be able to revise it much, you will forget it. So that's why you have to create some these patterns or mnemonics or some trick kind of thing, तो अपना कन्वीनियंस के लिए, अपने याद वाद करने के लिए, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है ये। तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा है, लो प्रेशर एरिया कहाँ क्रिएट हो रखा है? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में हो रखा है। ठीक है, मतलब एल नीनो की जो बात है वो कई हद तक सही है। लेकिन जब हम ला नीना के देखेंगे तो ला नीना के केस में क्या होता है कि यही विंड सपोर्ट करने लग जाती है। अब मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा भाई, अगर आपको समझाना है। तो लानिना के केस में क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून है तो साउथ वेस्ट मानसून के साथ ही विंड आ जाती है, उसके सपोर्ट में विंड आ जाती है। हाँ, इसका मतलब यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, एक मिनट। तो इसका मतलब ये है कि लानिना के केस में जो नॉर्मल विंड होती है वो इस तरीके से होती है।
फिर यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ आएगा और इस तरीके से उसमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट रखा होता है। तो ला नीना क्या बोल रहा है वो कि ला नीना, तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है। तो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ये क्या इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में हो रहा है भाई? ये सब नहीं ना भाई, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में नहीं हो रहा है ना ये सारी चीजें। ये सब कुछ पैसिफिक ओशन में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, ला नीना का इम्पैक्ट। बट द कॉजिंग फिनोमेना, द एक्चुअल फिनोमेना इज ऑकरिंग इन द पैसिफिक ओशन, एंड दैट टू हैपनिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब चाहे वो हीटिंग हो रही हो या वार्मिंग हो रही हो, वो कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे वो लग ही नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। बट द basic thing is that it happens in the Eastern Pacific Ocean. It has no correlation. Its effect is, I mean, its effect is showing in the Indian Ocean, and that too, if we specifically say in the Indian subcontinent part. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट को देखें हम कि एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। ऐसा कैसे हो सकता है यार? बेसिक चीज है ना, मतलब तुम अपने जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उससे चले जाओ, या तुम लॉजिकली सोच लो कि इतना बड़ा फिनोमेना का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा मानसून क्लाइमेट में। हाँ, जबकि एल नीनो ला नीना रिलेट ही, टॉपिक ही, सब टॉपिक्स ही इम्पैक्ट ही मानसून को करते हैं। तो बकवास स्टेटमेंट है कि नहीं है? और हमने पढ़ा भी है कि ला नीना की वजह से जो मानसून क्लाइमेट है इट गैस इंटेंसिफाइज, और जो आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट वाला रीजन है इट रिसीव्स मोर रेनफॉल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। उस हिसाब से हम देखें नीदर वन और टू इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन, ठीक, which one of the following events detected in last decade is associated with occasional weak monsoon rains in Indian subcontinent? ओकेजनल वीक मानसून। अब आप बताओ, अभी पढ़ा है कि किसकी वजह से मानसून कम हो जाती है, किसकी वजह से मानसून कम हो जाता है, और किसकी वजह से मानसून गेट्स इंटेंसिफाइड। जरिए होगा, इजी है, पता है सबको। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग समर सीजन draws air from the Indian Ocean leading to the blow of air। मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है बना देते हैं, क्या दिक्कत है? ये भारत हो गया, ठीक है। वो बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लो प्रेशर एरिया हो रखा है भाई, आईटीसीजेड इधर शिफ्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? समर सीजन हो रखे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की समर चल रही है, आईटीसीजेड इसके ऊपर शिफ्ट हो रखा है, तो इट ड्रॉज एयर फ्रॉम इंडियन ओशन लीडिंग टू ब्लो ऑफ। बेसिक बेसिक, बहुत ही बेसिक। क्या होगा? साउथ वेस्ट मानसून ही तो आएगा। हो गया ना, हो गया। तो बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आगे भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, उठाएगा, मतलब जो भी पूछेगा यू विल बी एबल टू टैकल फ्रॉम द कंटेंट वी हैव डिस्कस्ड। ऑलराइट, बस अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से कर लेना, नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स को क्रिएट कर लेना एक बार उसको, फिर उसके बाद रिवाइज करते रहना। और जो भी आपको करंट अफेयर मैगजीन जो भी आप फॉलो करते हो, विजन और वट, आप उससे उसको सब्सटेंशिएट करते रहना, कुछ भी मिल जाए। जैसे कि रिसेंटली अभी हमने देखा है कि जो 2025 की जो ये जो विंटर होंगी अपनी ये वाली, ये लानीना को देखेंगी, और क्योंकि लानीना कॉज होगा तो जो विंटर होंगी वो बहुत हैवी होगी। मतलब हैवी का मतलब है कि दे विल बी कोल्ड देन नॉर्मल ईयर्स। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं।